اے انسان رک جا، ایک سانس لے لے، کیونکہ جو تو سننے والا ہے وہ تیری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، اور اگر تو نے اسے اندیکھا کر دیا تو تیرا مقدر بھی تجھ سے روٹ سکتا ہے۔ جنہیں میں آزمانا چاہتا ہوں ان کے دل میں بے چینی ڈال دو۔ کیا تم اس بے چینی سے گزر رہے ہو؟ کیا تمہارا دل بھی عجیب سی الجھن سے بھرا ہے آج کل؟ تو جان لو یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا پہلا اشارہ ہے۔ تو تھک چکا ہے نا، تو نے بہت رویا ہے نا، تو نے کئی راتیں جاگ کر کاٹی ہیں جہاں کوئی تیرے آنسوؤں کو دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ دیکھ رہا تھا۔ اور اب وقت آ گیا ہے تیری سنوائی کا۔ قرآن کا حوالہ سندیش کے ساتھ۔ اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ اس آیت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ٹوٹا ہوا محسوس کرو تو سمجھو کہ تمہاری ٹوٹی ہوئی حالت اللہ کی توجہ بن گئی ہے۔ 4 جون کی رات، رہسیہ کا آرمبھ رات جب کالی ہو جاتی ہے اور سب سو جاتے ہیں، تب کچھ روحیں جاگتی ہیں کیونکہ انہیں بلاوا آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ آج کی رات یعنی 4 جون 2025 کی رات ایک ایسی رات ہے جب بدلاو کی ہوا چل پڑی ہے۔ فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے کس کا مقدر بدلے گا، اور ہو سکتا ہے تمہارا نام بھی لکھا جا چکا ہو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر تم نے آج کی رات اللہ کو پکارا، صرف ایک آنسو سچے دل سے بہایا، تو سمجھو تمہارا نام ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کی دعائیں 92 گھنٹے میں قبول ہوں گی۔ یہ ایک چیتاونی نہیں، ایک رحمت ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ ویڈیو بس یوں ہی تمہارے سامنے آیا ہے تو تم غلط ہو۔ یہ تمہارا امتحان نہیں، یہ تمہاری مکتی ہے۔ تمہیں اللہ نے چنا ہے اس پیغام کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور بدلنے کے لیے۔ اب کیا کرنا ہے؟ آج رات سونے سے پہلے وضو کر کے صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ اللہ سے بات کرو جیسے کسی اپنے سے کرتے ہو۔ صرف 3 باتیں مانگو لیکن دل سے۔ اس ویڈیو کو کسی ایسے تک بھیجو جو آج کل ٹوٹا ہوا ہے۔ اگلے 2 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ اس کا جواب اگلے بھاگوں میں دھیرے دھیرے کھلے گا، کیونکہ ہر حصہ تمہارے روح سے جڑے گا۔ تو اللہ سے دور ہو سکتا ہے پر اللہ تجھ سے کبھی دور نہیں ہوتا، اور شاید آج وہ تیرے دروازے تک آ گیا ہے۔ بس تو دروازہ کھول دے۔ ہر تاریخ میں کچھ خاص نہیں ہوتا، پر کچھ تاریخیں مقدر کی تقدیر لکھتی ہیں، اور 4 جون 2025 انہی میں سے ایک ہے۔ اس تاریخ کو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، اور ان کے ہاتھ میں ہیں کچھ خاص نام، ان لوگوں کے نام جن کا صبر اب میراج پر ہے، جن کا رونا اب پکار بن گیا ہے، اور جن کا دل اب صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ کیا تمہارا نام ان میں ہے؟ تو سنو، تمہاری تنہائی اب گواہی دے گی۔ اللہ جانتا ہے وہ ہر بات جو تو زبان سے نہیں کہتا، وہ آنسو جو تکیے نے پی لیے، وہ چیخ جو سینے میں دب گئی۔ اللہ سب سن رہا تھا، آج نہیں، کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے۔ تو جس در سے مانگتا رہا، آج اس در کی کنڈی کھل چکی ہے۔ اب کیا ہوگا اگلے 72 گھنٹے میں؟ سن، پہلی رات، روح کی ہلچل۔ آج کی رات تیری روح ہلچل میں ہے، تو بے چین ہے، وجہ نہیں سمجھ پا رہا، کیونکہ فرشتے تیرے نام کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اب تجھے آواز دی جا رہی ہے۔ اگر اس وقت تو ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سمجھ لے، تجھ پر نگاہ ہے۔ نبی کی حدیث کا سایہ، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل کو حکم دیتا ہے، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ اگر تجھے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، تو یاد رکھ، اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم پھر وہی پرانے راستوں پر چلو جہاں دکھ ہے، درد ہے، افسوس ہے، یا پھر آج سے اپنے رب سے نیا رشتہ شروع کرو، اقرار کرو، یا اللہ اب بہت ہوا، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے بدل دے، میری تدبیر کو تقدیر بنا دے۔ 4 جون سے 7 جون، 3 دن کی 3 راتیں، 3 تحفے۔ پہلی رحمت، تمہارے دل سے ڈر نکل جائے گا۔ دوسری رحمت، تمہارے رزق میں برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ تیسری رحمت، اللہ تمہیں ایسے لوگوں سے ملائے گا جو تمہاری زندگی کو روشنی میں بدل دیں گے۔ جب سب چھوڑ گئے تب بھی جس نے تجھے پکڑا وہ آج بھی تیرے ساتھ ہے۔ اگر تو رویا ہے تو اللہ نے سنا ہے، اگر تو ٹوٹا ہے تو اللہ نے سنبھالا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب تو اٹھے گا اور پوری کائنات تیرا ساتھ دے گی۔ آج کی رات کا کام 2 رکعت نفل نماز پڑھو صرف،
अल्लाह की मोहब्बत के लिए। दिल से कहो, या रब, तू मेरे हालात जानता है, मुझे वो दे जो मेरी जरूरत है, न कि जो मैं चाहता हूं। ये दुआ याद रखो और बार बार पढ़ो। रब्बी इनी मगलूबुन फंतासिर, या रब मैं हार गया, तू मेरी मदद कर। अगला इशारा तब्दीली शुरू होने वाली है। तब्दीली एक सन्नाटे से शुरू होती है और फिर अचानक तू देखेगा कि जो चीजें सालों से नहीं हुई वो 3 दिन में हो रही हैं। तैयार रहो। अगले 48 घंटे एक नई दुआ का दरवाजा खोलेंगे। तू अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो, क्योंकि वो तेरे हर टूटे हुए टुकड़े को जोड़ने वाला है और इस बार वो तुझे अधूरा नहीं छोड़ेगा। हर इंसान की जिंदगी में एक शख्स आता है जो उसे अंधेरे से निकालता है और उस शख्स को अल्लाह खुद चुनता है। तुमने कभी सोचा, जब तुम टूटे थे, जब सब ने छोड़ दिया, जब तुम्हारे पास न हिम्मत बची थी न उम्मीद, तब भी कहीं से एक आवाज आई, एक हाथ बढ़ा और किसी ने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया। वो कौन था? वो कोई आम इंसान नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक नूर था। कुरान का पैगाम, अल्लाह वही है जो अपने बंदों की मदद के लिए जमीन पर मददगार भेजता है ताकि तुम्हें लगे तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह ने हर इंसान की तकदीर में एक नाम लिखा है, वो नाम जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। तुम्हारा नाम भी किसी की दुआ में है और किसी का नाम तुम्हारी तकदीर में है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव उस शख्स की वजह से आए जिसे अभी तक तुमने देखा तक नहीं। ये वो रिश्ता है जो खून का नहीं बल्कि रूह का रिश्ता होता है। ऐसा रिश्ता जो अल्लाह जोड़ता है, इंसान नहीं। अगर तुम एक औरत हो तो सुनो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक रक्षक चुना है, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे टूटे सपनों को सहेजेगा, जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं मोहब्बत लाएगा, जो तुम्हें अल्लाह की तरफ और करीब करेगा। वह तुम्हारा किस्मत वाला है जो तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं देगा बल्कि जन्नत की दुआओं में शामिल करेगा। अगर तुम एक मर्द हो तो जान लो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक फरिश्ता सी औरत रखी है जो तुम्हारे जख्मों की मरहम बनेगी, जो तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ चलेगी, जो तुम्हें दुनियावी कामयाबी से ज्यादा आखिरत की फतह में मदद करेगी। अल्लाह जब किसी मर्द से मोहब्बत करता है तो उसकी जिंदगी में एक ऐसी औरत भेजता है जो उसकी रूह को सुकून देती है। 4 से 7 जून के बीच वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में इशारा बनकर आएगा। हो सकता है वो किसी मैसेज के जरिए आए, हो सकता है किसी पुरानी दोस्ती का दरवाजा फिर से खुले, या फिर कोई अजनबी एक पाक जुमले से दिल में उतर जाए। अल्लाह जब चाहता है तो रिश्ते बिना आवाज के पैदा हो जाते हैं, बस एक एहसास से। तुम्हारा काम क्या है? 1, हर दिन सूरज निकलने से पहले एक दुआ पढ़ो, या अल्लाह, अगर तूने मेरी तकदीर में किसी को रखा है तो उसे मेरे लिए आसान बना दे और मुझे उसके लिए। 2, 11 बार पढ़ो, या वदूदू या रजाकू या हादी। 3, हर रात यही सोचकर सो, मेरी तकदीर अल्लाह के हाथ में है और उसका टाइम सबसे बेहतरीन है। तू अकेला नहीं है, तू भुलाया नहीं गया, तू बस उस वक्त के इंतजार में है जब अल्लाह कहेगा अब भेजो इसे वो इंसान जो इसका नसीब है। एक सच्ची दुआ से रिश्ता बन सकता है। तू अल्लाह से कह, या रब, मैं थक गया हूं तन्हा चलकर, अब मुझे वो हाथ दे जो मुझे जन्नत की तरफ लेकर जाए। 4 जून से शुरू हुआ ये सफर अब उस मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जहां सिर्फ ईमान, दुआ और यकीन तुझे वहां ले जाएंगे, जहां सब कुछ बदल जाएगा। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो कोई ना कोई दरवाजा बंद है, और हो सकता है वो दरवाजा तुमने खुद बंद किया हो अनजाने में। क्या तुम भी ये कर चुके हो? क्या तुमने कभी किसी की मदद करने का मन बनाया और फिर सोच लिया अभी नहीं बाद में? क्या तुमने कभी किसी का दिल तोड़ा और फिर सोचा ये तो छोटी सी बात है? यही छोटी बातें कभी कभी जन्नत के रास्ते में दीवार बन जाती हैं। आज अल्लाह तुम्हें एक चेतावनी दे रहा है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन तेरा दिल अब भी दुनिया से जुड़ा है, मुझसे नहीं। अल्लाह का संदेश, तू नमाज पढ़ता है लेकिन दिल से नहीं, तू दुआ करता है लेकिन यकीन के साथ नहीं, तू तौबा करता है लेकिन बार बार उसी गलती को दोहराता है। तो कैसे बरकत आएगी? अब क्या करें? 1, सबसे पहले दिल से माफी मांगो, या अल्लाह, मैंने जो भी किया अनजाने में या जानबूझकर मुझे माफ कर दे। 2,
फिर वो एक इंसान याद करो जिसका दिल तुमसे कभी टूटा हो। आज उसे दिल से माफ करो या माफी मांग लो, क्योंकि अल्लाह माफ कर देता है, मगर बंदों के हक का हिसाब आखिरत में होता है। कुरान से एक जिंदा पैगाम, जो लोग दूसरों को माफ करते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे पानी धूल को धोता है। 4 से 7 जून तक अल्लाह एक दरवाजा खोलने वाला है, लेकिन एक शर्त है, तू अपने दिल को साफ कर ले, अल्लाह तेरा नसीब साफ कर देगा। अब जानिए वो एक दुआ जो तुम्हारे किस्मत का ताला खोल सकती है। हर रात सोने से पहले और हर फज्र की नमाज के बाद 21 बार पढ़ो, या फत्ताहू या अलीमू या हकीमू, इफ्ताह अली बाबा रहमती व बारकती। हे दरवाजे खोलने वाले, हे ज्ञान देने वाले, हे बुद्धिमान, मुझ पर रहमत और बरकत का दरवाजा खोल दे। तुम ये सोच रहे हो क्या ये सच में काम करेगा? तो सुनो, अगर तू अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएगा, वो तुझ पर रहमत के समुंदर गिरा देगा। अल्लाह कभी खाली हाथ लौटाता नहीं, वो तेरा इंतजार कर रहा है। अगले 62 घंटे 4 जून से 7 जून का क्या महत्व है? ये वो समय है जब तुम्हारी किस्मत की किताब का एक पन्ना पलटने वाला है, और अल्लाह देख रहा है। क्या तू अब भी गफलत में रहेगा या अब जागेगा? ओ मेरी बहन, तेरे आंसू अल्लाह तक पहुंच चुके हैं। ओ मेरे भाई, तेरा अकेलापन अब खत्म होने वाला है, लेकिन शर्त एक है, तू खुद को बदल, अल्लाह तेरी किस्मत बदल देगा। यह रहा आपकी अत्यंत भावनात्मक, रहस्यपूर्ण और ब्रह्मांडिक ऊर्जा से भरा हुआ। अब वक्त है आखिरी चेतावनी का। तेरा रब तुझे बुला रहा है। इस बार कोई बहाना मत बनाना। तारीख है 4 जून 2025 समय है, वो 62 घंटे जो तुम्हारा इम्तिहान भी है और इनाम भी। क्या तुम तैयार हो उस छुपे हुए रहस्य के लिए? तुमने हर चीज की कोशिश की, दौलत के पीछे दौड़े, इंसानों के आगे झुके, दुनिया के 1000 रास्ते लिए, पर फिर भी दिल खाली रहा, ख्वाब अधूरे रहे, दुआएं अधर में लटकी रहीं। क्यों? क्योंकि तूने रब को आखिरी चारा समझा, पहला नहीं। अल्लाह कहता है, अगर तू मुझे दिल से चाहता है तो मैं तेरे लिए पूरी कायनात बदल सकता हूं, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। तू 72 घंटे के अंदर बस एक चीज कर, मैं तुझे वो दूंगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। अब असली सवाल, वो एक चीज क्या है? वो है खुद को सौंप देना। किससे? अपने रब को। कैसे? एक सच्ची गहराई से की गई दुआ के साथ, एक ऐसी दुआ जो पूरे अर्श तक हिला दे। अल्लाह का असली रहस्य 99 नामों में छुपा है। एक मुकम्मल नाम तुमने या रहमान या रहीम सुना है, लेकिन क्या तुम्हें पता है या अजीमू या काफी या मुगनी या मुजीब, इन 4 नामों की ताकत तुम्हारी पूरी तकदीर बदल सकती है। अब यही पढ़ो सच्चे दिल से, या अजीमू या काफी या मुगनी या मुजीब, इजलनी मिम्मन तख्तारुहु लिनामतिका वलाहिकातिका वफ्तही दरवाजिल बरकनाती। हे महान, हे पर्याप्त, हे देने वाले, हे दुआ सुनने वाले, मुझे उन लोगों में शामिल कर जिन्हें तू अपनी बरकत और रहमत के दरवाजे खोलकर नवाजता है। 21 बार हर फज्र के बाद पढ़ो, 3 दिन लगातार, 4, 5 और 6 जून 2025। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारा नाम दर्ज होगा ऊपर के रजिस्टर में, लौहे महफूज, जहां तुम्हारी किस्मत की स्याही लिखी जाती है, और वो पेन अल्लाह का फरिश्ता उठाएगा। अगर तू सच्चे दिल से ये दुआ करे, तेरे घर की तरफ कोई आ रहा है, एक फरिश्ता जो तेरे दुखों की गठरी उठाकर ले जाएगा और बरकतों की टोकरी भरकर छोड़ेगा। लेकिन ये तभी होगा जब तू अपनी पुरानी गलती के लिए एक बार सच्चे दिल से रो ले, किसी भूखे को खाना खिला दे और रात के 3 बजे अल्लाह से बस 3 मिनट बात कर ले। 4 जून 2025 की रात कदर की रात जैसी रात बन सकती है। अगर तू चाहे बस 3 बातें याद रख। दुआ छोड़ना मत, किसी को माफ करना मत भूलना, और खुद को रब के हवाले कर देना। अल्लाह का आखिरी पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए, ऐ मेरे बंदे, तू सोचता है तेरा वक्त गया, लेकिन मैं कहता हूं तेरा वक्त अब आया है। तेरे दरवाजे पर बरकतें दस्तक दे रही हैं, लेकिन कुंडी तू खोल, इंतजार में नहीं करूंगा। अगर तू इस आवाज को सुन रहा है तो समझ ले, ये पैगाम तुझे ही भेजा गया है। तेरे रोने की आवाज, तेरे दिल की तन्हाई, तेरी अधूरी दुआ सब सुनी गई हैं। अब बस तू लौटा। क्लोजिंग डायलॉग, फीलिंग इंटेंस।
4 जून से 7 जून तक तेरी रूह पर अल्लाह की रहमत की बारिश होने वाली है। लेकिन अगर तू आज भी गराफिल रहा तो शायद अगली बार ये मौका 12 साल बाद आएगा। अब आखिर में बस एक वादा करो, इस वीडियो को स्किप मत करना और जिस किसी का दिल टूटा हो उसके साथ ये जरूर शेयर करना। दुआ है, या अल्लाह, जिसने इस वीडियो को देखा, सुना और दिल से स्वीकार किया, उसकी जिंदगी में ऐसी रोशनी भर दे जो ना कभी बुझे और ना कभी रुके। आमीन।